अस्सलाम स्टूडेंट CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम के मिड टर्म एग्ज़ाम के सिलसिले में जो वीडियो है, इसमें पहले 22 लेक्चर्स में से MCQs आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है फाइल डिस्क्रिप्टर फॉर स्टैंडर्ड इनपुट, वो होता है 0। ठीक है जी। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट है, द BSD sockets are used for communication between related or unrelated processes on the same system or unrelated processes। ठीक है जी, on different systems। आगे है ये कोई 350 प्लस MCQs हैं, क्वेश्चंस हैं। तो देखता हूँ जितने मैं आपके साथ शेयर कर सका। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम मल्टीपल यूजर्स आर अलाउड टू यूज़ द कंप्यूटर साइमल्टेनियसली। तो इसका आंसर है मल्टी यूज़र्स। ठीक है जी। मल्टी यूज़र में होता है कि मल्टीपल यूज़र्स आर अलाउड टू यूज़। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, अच्छा ये फिर वही आ गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउंड रॉबिन scheduling algorithm is designed specially for time sharing system। नेक्स्ट है, cooperating processes sharing a piece of code as executed periodically to solve। ये इसके ना ऑप्शन यहाँ से छुप गए हैं, तो एक मिनट शायद यहाँ। अच्छा नेक्स्ट है, scheduling of dash are done by operating system। तो kernel threads है, scheduling of kernel threads are done by the operating system। next है, the solution type where in critical section we use an entry section and exit section is called kind of software solution। which of the following provide interface to access the services of the operating system। वो होता है system call। next है, we can use semaphores to deal with the number of n process critical section problem। the question है, we can use semaphore to deal with the number of n। अच्छा ये तो हो गया। next फिर, which of the following information is not displayed। अच्छा इसके चौथा ऑप्शन यहाँ से मिसिंग है। P1 P2 P3 P4 P5 are 5 processes with ticket number P1 is equal to 1, P2 2, P3 का 4 है, P4 का 2 है, P5 का 4 है। then casting Lamport Bakery's algorithm, P2 जो होगा इसका आंसर है P2 process enter critical section after P1। ठीक है जी, आगे चलते हैं। in operating system dash command is used to copy files to same location or different location। तो CP की कमांड होती है, CP कमांड यूज होती है। नेक्स्ट है, concurrent processes must be synchronized to prevent race condition। a process having multiple threads of control implies it can do more than one task at a time। ये है आंसर। फिर है जी, which of the following is used to slow the end of file in Unix। वो होता है Ctrl+D होता है। नेक्स्ट है, correct command for compiling C program named program C in Linux environment वो is gcc program C स्पेस फिर के बाद -0 या -0 कह लें, इस तरह फर्स्ट प्रोग्राम। आपने अपनी असाइनमेंट बनाई होगी ना उसमें, तो असाइनमेंट में इस तरह से वो GCC की कमांड जो लिनक्स की, वो इस तरह की असाइनमेंट आई थी लिनक्स की से रिलेटेड, उसमें इस तरह की कमांड यूज़ होती हैं। फिर है क्वेश्चन है, FIFOs also known as named pipe are used for communication between both related और unrelated दोनों प्रोसेस और यूनिक्स लिनक्स सिस्टम में यूज है। ये आंसर है इसका। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम डैश रिक्वायरमेंट। तो प्रोग्रेस जो होता है, प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट illustrate that if no process is executing in its critical section and some processes with wish to enter their critical section, then only those processes that are not executing in their remainder section can participate in the scene on which will enter its critical section next, and this section selection cannot be postponed indefinitely। आगे चलते हैं। Dash scheduler selects the process from the job pool and put them in main memory। तो long term scheduler जो होता है ये select करता है। आगे है कि section of code after the critical section is called, इसका यहाँ से ना वो exit section इसका आंसर है, यहाँ से वो चौथा ऑप्शन, ये इसका आंसर है exit section। ठीक है जी। आगे है, ये देख रहे हैं एग्जिट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश enable a user process to request the operating system to execute a privileged instruction for it। तो उसका आंसर है सिस्टम कॉल। ठीक है जी। आगे चलते हैं। We can terminate a thread explicitly by either returning from the thread function or by using the pthread underscore exit कॉल से। फिर है जी डैश आर यूज टू शो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस। तो गैंट चार्ट जो होते हैं आर यूज टू शो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस। नेक्स्ट है ए प्रोसेस इज डैश। प्रोसेस जो होता है इंडिपेंडेंट होता है, प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट, इट इज कैन नॉट अफेक्ट और बी अफेक्टेड बाय एनी अदर प्रोसेसेस एग्जीक्यूटिंग इन द सिस्टम। नेक्स्ट है in process synchronization, if both the producer and consumer attempt to update the buffers concurrently, the machine language statements may get interleaved. Interleaving depends upon how the producer and consumer processes are scheduled। Next है dash command in Linux is used to copy file। तो cp जो होता है copy file करने के लिए होता है Linux में। Next है dash scheduling algorithm is sometimes called shortest remaining time first scheduling algorithm। तो preemptive shortest job first जो होते हैं इसको कहते हैं scheduling algorithm। नेक्स्ट है in indirect communication between processes P and Q dash, वो dash में आएगा there is a mailbox to help communication between P and Q। नेक्स्ट है एम के डायरेक्टरी, एम के होता है मेक डायरेक्टरी, एम के डी आर कमांड जो होती है ये मेक डायरेक्टरी की कमांड होती है। अच्छा ये एम के नहीं आर एम के है, सॉरी आर एम के डी आई आर कमांड इज यूज टू रिमूव एन एम टी डायरेक्टरी। ठीक है, आर फॉर रिमूव ये उसके लिए यूज होगी। नेक्स्ट है clock interrupt handler is an example of kernel thread that is not executed for servicing a request by a user thread। It is named as LWP। अच्छा सा स्टूडेंट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन ऊपर आया था तो वहाँ मैंने ना आपको वो गलती से मिस्टेक से एग्जिट सेक्शन बता दिया। इसका आंसर है रिमाइंडर सेक्शन। सेक्शन ऑफ कोड आफ्टर द क्रिटिकल सेक्शन इज कॉल्ड रिमाइंडर सेक्शन। ये वाला आंसर है, ये यहाँ से नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा, ये रिमाइंडर सेक्शन, ये लिखा हुआ रिमाइंडर सेक्शन, ये आंसर है इसका करेक्ट। पहले मैंने गलती से एग्जिट सेक्शन बता दिया था। अच्छा आगे चलते हैं। रेडी क्यू इन आर राउंड रॉबिन में जो रेडी क्यू होती है स्केजुलिंग एल्गोरिथम में इज रेफर टू एज होती है लाइफो, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है जी, रेडी क्यू जो होती है राउंड रॉबिन में वो लाइफो होती है। फिर है जी विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू रीड डाटा फ्रॉम फाइल नेम्ड एकेडमिक्स। तो इस तरह से इसकी कमांड होगी कैट लेस देन एकेडमिक्स। आगे है taking the CPU from one process and giving the CPU another process is termed as
स्वैपिंग कहते हैं उसे, एक सीपीयू से लेके दूसरी सीपीयू को देना, उसे स्वैपिंग कहते हैं। फिर है जी BST सॉकेट्स आर यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन रिलेटेड अनरिलेटेड प्रोसेस ऑन द सेम सिस्टम आर अनरिलेटेड प्रोसेस ऑन डिफरेंट सिस्टम। ये शायद दोबारा रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है ऑल यूनिक्स एंड लिनक्स सिस्टम्स हैव वन थिंग इन कॉमन विच इज़ सेट ऑफ सिस्टम कॉल्स। यानी कि यूनिक्स और लिनक्स सिस्टम में एक चीज़ कॉमन होती है, वो होता है सेट ऑफ सिस्टम कॉल्स। नेक्स्ट है टू डिस्प्ले ऑल प्रोसेसेस डैश ऑप्शन इज यूज विद PS कमांड। टू डिस्प्ले ऑल प्रोसेसेस, ये जो है इस तरह से दिस ऑप्शन इज यूज टू यूज विद PS कमांड। ये देख लें, डैश एल इस तरह से ये कमान है, ये बार है, ये वाली यूज़ होगी, ठीक है। नेक्स्ट है डैश कमांड डिस्प्ले द स्टेटस ऑफ प्रोसेस। तो PS की कमांड होती है वो डिस्प्ले करती है स्टेटस ऑफ प्रोसेस। नेक्स्ट है जी when processes communicate with each other, they perform communication through synchronization and utilizing separate address space. This section is termed as process management. इसको कहते हैं process management. नेक्स्ट है डैश डायरेक्टरी इंक्लूड essential system boot files including the kernel image। तो ये देखें स्लैश बूट डायरेक्टरी इंक्लूड essential system boot files including kernel image। स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई ये फ़ायदा होगा कि आपके तमाम जो आपके कोर्स के तमाम सब्जेक्ट के मिड टर्म फाइनल टर्म क्विज़ेस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। असाइनमेंट्स भी मैं अपलोड करता रहता हूँ और GDP भी। नेक्स्ट है वी कैन परफॉर्म द सॉल्यूशन टू क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम बाय अलाउइंग only one process to enter at a time, but another solution holds some instruction. Use one of them is TSL. How it is written in program। वो इस तरह से, ये फर्स्ट जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, ऐसे वो रिटर्न होगा, ठीक है जी। और दूसरा ये कहना है कि ये 363 आंसर MCQs है मेरे पास, तो मेरी कोशिश होगी 200-250 तो मैं आपके पढ़ के दिखाऊं, शो करूं। तो दूसरा देखते हैं कितनी मैं वीडियो लंबी हो सकती है या कितने मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ। तो मेरी कोशिश है कि आपको करेक्ट आंसर बताऊँ। कहीं अगर कोई मिस्टेक होगी तो मेरी कोशिश होती है 99% आपको करेक्ट बताऊँ, वैसे तो 100 ही होती है। एक आध कोई अगर मिस्टेक हो जाए तो सॉरी कर उसके लिए। तो वैसे तो मिड टर्म में 20 MCQs आते हैं, तो ये 200-250 तो मैं आपको यहाँ पे शो कराऊंगा। तो इतने काफ़ी होते हैं मिड टर्म की तैयारी के लिए। कंसिडर 3 प्रोसेसेस इन स्केजुलिंग, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है और रट्टा ही लगाना है। मैंने भी सब्जेक्ट में रट्टा ही लगाया था, बड़ा ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा सब्जेक्ट है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग के नज़र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर 3 प्रोसेसेस इन स्केजुलिंग, हेयर आर द वेटिंग टाइम फॉर द 3 प्रोसेसेस। P1 4 है, P2 2 है, P3 6 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एवरेज वेटिंग टाइम पर प्रोसेस। तो वो होगा 4, ठीक है जी, ये है इसका आंसर। ये ना जो मैं आपको जितने MCQs दिखा रहा हूँ ये ना मैंने खुद इकट्ठे करके तो इसकी तैयारी करके याद करके इसको फिर जाके इम्तहान देने मिड टर्म का मैं गया था। यानी कि जब कोरोना के दिन में ये मिड टर्म नहीं हुआ था, ये ग्रैंड क्विज़ हुआ था हमारा, तो इस तरह से मैंने तैयारी करके दिया था, अच्छा ही हुआ था। TSL बेस TSL based solution can implement mutual exclusion. It abbreviates test and set instruction। ये आंसर है। नेक्स्ट है in Unix Linux environment Aisha wants to know the complete picture of current process in her session. Which of the following command will help her in this regard? तो $PS ये कमांड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर प्रोसेस एंड शेड्यूल, हियर आर द वेटिंग टाइम फॉर द प्रोसेस। पहला P1 5 है, P2 10 है, P3 3 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एवरेज वेटिंग टाइम पर प्रोसेस होगा, वो होगा 6 होगा, ये है इसका आंसर। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड ए प्रोसेस।
प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन जो होता है उसे प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट है सेमाफोर एस इज़ एन इंटीजर। ये सेमाफोर एस एक इंटीजर होता है, इंटीजर टाइप होता है ऑफ वेरिएबल टू यूज एज सिंक्रोनाइजेशन टूल। नेक्स्ट है इन हार्डवेयर मल्टीप्रोसेसर एनवायरनमेंट टू इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली आंसर है विच आर स्वैप एंड टेस्ट एंड सेट। Next, under dash, once the CPU has been allocated to a process, the process keeps the CPU until either it switches to the waiting state, finishes its CPU burst or terminates. तो non preemptive scheduling इसका आंसर है। फिर ये नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ये चार स्टेटमेंट है नीचे, वो कह रहा है इनमें से कौन सी ट्रू है फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए। तो पहली है द कम्युनिकेशन लिंक कैन बी एसोसिएटेड विद n number of n number of process, n is equal to max number of processes supported by system। ये इसका आंसर है। अच्छा आगे चलते हैं जी। ये क्वेश्चन है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट कैन बी कैटेगराइज्ड इन सम सॉर्ट ऑफ मैसेज पासिंग टेक्निक्स, दिस टाइप इज नेम्ड एज। इसे क्या कहेंगे, सेंड कहेंगे या रिसीव कहेंगे। ठीक है, ये नीचे दो स्टेटमेंट दी हुई हैं, तो इनको क्या कहेंगे हम, मैसेज पासिंग टेक्निक सम सॉर्ट ऑफ। तो एक्सप्लिसिट बफरिंग, ठीक है, इसका आंसर है। दिस टाइप इज नेम्ड एज एक्सप्लिसिट बफरिंग। आगे है इन क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम बाउंडेड वेटिंग रिक्वायरमेंट illustrate that if no process is executing in its critical section or some processes। तो ये देखें, ये पूरा जो क्वेश्चन है काफ़ी लंबा सा है, ये देख लें, इसका ये आंसर है बाउंडेड वेटिंग। पढ़ूंगा तो ये और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सिस्टम कॉल्स प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन इट यूज़र एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, जहाँ पे आपको ना थोड़ा सवाल की चाहते हो कि अच्छा उसे गौर से ध्यान से पढ़ लें, ये याद करना, तो वहाँ वीडियो स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट लेके आराम से आप उसे तैयार कर सकते हैं। मैंने तो चूँकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इसलिए थोड़ा तेज़ी से चलना है। आगे चलते हैं। डैश कमांड इन लिनक्स इज़ यूज टू कॉपी फाइल। कॉपी फाइल के लिए सी फॉर कॉपी, ठीक है, सी फाइल यूज़ होती है, सी कमांड। वी कैन सस्पेंड ए फोरग्राउंड प्रोसेस बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस Z, which sends a stop suspended signal to the process। Which of the following is not a major advantage of multi-programming system is if more processes exist, the rest must wait until the CPU is free and can be scheduled। Next है critical section is a place where certain shared structure is updated। Its solution requires certain precaution। One of them is the access of critical section by one process at only one time। Or what is the uh, what is the correct termed as which, what is condition, what is condition termed as what this condition termed as। इसका आंसर है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, ये आंसर है इसका। आगे चलते हैं। When a process has undivided access to a shared piece of code, then no other process can execute this code। This state is called mutual exclusion। ठीक है, ये आगे है dash scheduling can be made into a processor sharing approach। तो first come first serve scheduling जो होती है can be made with into a processor sharing approach। next है the correct command for compiling C program named program.c in Linux environment वो होती है gcc program.c -0 first program। ये होती है, पहले भी आया क्वेश्चन, दोबारा रिपीट है। फिर ये क्वेश्चन है फॉर रीडिंग इनपुट विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कॉल इज़ यूज, वो होती है रीड की। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि रेडी क्यू इन राउंड रॉबिंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज रेफर टू एज। पहले ना ये क्वेश्चन मैं पढ़ चुका हूँ ऊपर, तो वहाँ पे मैंने ये गलती से इसको ये पढ़ा था, इसका करेक्ट आंसर सर्कुलर क्यू है। ठीक है जी, तो ये पहले मैंने क्वेश्चन का ये ऊपर ये गुजर चुका है, ये आंसर पढ़ा था
लेकिन इसका करेक्ट आंसर ये है। रेडी क्यू इन राउंड रॉबिन शेड्यूलर एल्गोरिथम में रेफर टू एज होती है सर्कुलर क्यू। आगे है टेकिंग अ सीपीयू फ्रॉम वन प्रोसेस एंड गिविंग सीपीयू अनदर प्रोसेस टर्म्ड एज। अच्छा, पहले मैंने इसको गलती से स्वैपिंग पढ़ा था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट है ऑल यूनिक्स एंड लिनक्स सिस्टम हैव वन थिंग इन कॉमन विच इज़। वो क्या कॉमन चीज़ होती है? वो होता है सेट ऑफ कमांड्स। इसका भी मैंने पहले आंसर ये पढ़ा था, ये गलत है, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो जहाँ रेड टिक है वो करेक्ट आंसर होंगे। ये जो रेड टिक वाले इन्हें ज़्यादा स्पेशली आप याद करें। टू डिस्प्ले ऑल प्रोसेसेस, ये पहले मैंने ये वाली कमांड जो थी, ये ऑप्शन मैंने आपको बताया था, ये गलत है। तो डिस्प्ले करने के लिए प्रोसेस को ये वाली कमांड -e या -e ये यूज़ होगा, ये करेक्ट है। ठीक है, ये जितने ऊपर मैंने आपको बताए हैं ना वो इनकरेक्ट जो पढ़ दिए हैं, तो अब मैं करेक्ट उसके आपको बता रहा हूँ। ये कि पहले क्वेश्चन गुजरा है कि P1 4, P2 2 और P3 6, इसका वो 4 प्रोसेसिंग टाइम करेक्ट एवरेज टाइम वेटिंग पर सेकंड प्रोसेस बताया था 4, तो इसका करेक्ट आंसर है 2 है। ठीक है जी, ये देखें। फिर एक और क्वेश्चन अभी ये थोड़ी देर पहले गुजरा था कि 4 ऑप्शन है, तो वो ट्रू फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन ये वाला मैंने बताया था, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ए कम्युनिकेशन लिंक कैन बी एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली 2 प्रोसेसेस। फिर ये क्वेश्चन है, ये अभी गुजरा है थोड़ी देर पहले, गिवन बिलो द स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट थी सेंड रिसीव की, तो दिस टाइप इज टर्म्ड एज। इसका असल जो है वो करेक्ट आंसर डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। पहले मैंने ये पढ़ा था, बताया था आपको। इसका करेक्ट आंसर है डायरेक्ट कम्युनिकेशन। आप हैंड आउट से बेशक चेक कर सकते हैं, ये हैंड आउट से चेक करके ना दोबारा से वो उसे करेक्ट किए हैं। ठीक है, ये आंसर है इसका। फिर ये एक और क्वेश्चन इन क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट इलस्ट्रेट दैट, ये वाला पूरा क्वेश्चन था जो शायद मैंने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था पूरा, तो ये उसका मैंने आंसर बाउंडेड वेटिंग बता दिया था, ये गलत है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। हैंड आउट से बेशक आप चेक कर सकते हैं, ये इसका जहाँ भी रेड टिक होगा ये हैंड आउट से चेक करके उसे वो बताया हुआ होगा कि ये बाकी करेक्ट। ये क्वेश्चन है सिस्टम कॉल्स प्रोवाइड दी इंटरफेस बिटवीन। पहले मैंने यूज़र बताया था, इसका आंसर है प्रोसेस। सिस्टम कॉल प्रोवाइड प्रोसेस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो जो मेजर एडवांटेज नहीं है मल्टी प्रोग्रामिंग का, मेजर एडवांटेज ये 4 ऑप्शन थे, जिनमें से 3 तो मेजर एडवांटेज थे, एक नहीं था। तो दिस इज़ नॉट द मेजर एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ये है उसका करेक्ट आंसर। वो है जॉब्स कैन बी कंप्लीटेड क्विकली, ये उसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ये उसका एडवांटेज नहीं है। ये पहले शायद मैंने ये बताया, ये गलत है, ये। नेक्स्ट आगे है अब सॉरी, ये क्वेश्चन है एंड द प्रॉब्लम विद प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम इज स्टारवेशन, यानी कि प्रॉब्लम विद प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम जो होती है वो स्टारवेशन उसे कहते हैं, ये करेक्ट आंसर है। इस पे आगे चलते हैं। डैश इज यूज टू रिक्वेस्ट द OS बाय द प्रोसेस टू टेक एन IOR इनिशिएटिंग चाइल्ड प्रोसेस, तो वो होता है इंटरप्ट। नेक्स्ट आगे है डैश स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम कैन बी प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव, तो वो होती है प्रायोरिटी। नेक्स्ट है ये, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर लोएस्ट प्रायोरिटाइज प्रोसेसेस फॉर स्केड्यूलिंग इन कर्नल ग्रुप, उसका आंसर है यूज़र प्रोसेसेस। यूज़र प्रोसेस आर लोएस्ट प्रायोरिटाइज प्रोसेसेस। फिर है डैश स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम इज समटाइम्स कॉल्ड शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम, ये उसका आंसर है प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ये इसका आंसर है। तो नेक्स्ट है प्रोसेसेस थे
P1, P2, P3, P4 are enter the ready queue at time 0, 3, 3, 11 with burst time P1 is equal to 8, P2 2, P3 1, P4 1 with shortest remaining time first. The dash processes is given CPU at time t is equal to 3. तो P2 को जो होगा ना P2 प्रोसेस इज गिवन CPU एट टाइम T3 होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे है फोर प्रोसेस P1, P2, P3, P4 एंटर द रेडी क्यू एट टाइम 0 विद द बर्स्ट टाइम P1 3 है, P2 10 है, P3 4 है। वेटिंग टाइम ऑफ P3 वुड भी होगा 17 होगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड थ्रूपुट। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट ए प्रोसेस फ्रॉम कीपिंग CPU फॉर too long, control is shifted to another ready process by invoking a timer when running processes finishes its task। ये आंसर है इसका। नेक्स्ट है डैश व्यू इज दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज a रिसोर्स मैनेजर। द bottom up view is that operating system is a resource manager। To terminate a process, control C is pressed, which signal it actually pass to process for termination। sig sig int ये है इसका। नेक्स्ट है बैच प्रोग्राम्स आर यूजुअली इंटरैक्टिव प्रोग्राम। बैच प्रोग्राम जो होते हैं इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स होते हैं। यूनिक्स सिस्टम वी स्केजुलिंग यूजेस क्यूज विच रन राउंड रॉबिंग एल्गोरिथम। ठीक है, ये आंसर है। अच्छा स्टूडेंट, मेरी वीडियो को अगर आप 2-3 दफ़ा पूरा मुकम्मल देख लेंगे और सुन लेंगे ना तो आपको ये आंसर वैसे ही याद हो जाएंगे, तो पेपर आपका अच्छा हो जाएगा। बजाय खुद पढ़ने के सुनना जो है ना होता है ना वो ज़्यादा अच्छा बेहतर होता है। लेकिन ख़ुद भी बंदा देख रहा है और साथ सुन भी रहा है, ये डबल हो जाता है वो तैयारी के लिए बेहतर। टॉप की जो कमांड होती है टॉप डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉप प्रोसेस। ठीक है, ये फिर है जी ए प्रोसेस हैविंग मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ कंट्रोल इम्प्लाइज इट कैन डू मोर देन वन टास्क एट अ टाइम। नेक्स्ट है जी राउंड रॉबिंग स्केजुलिंग एल्गोरिथम इज डिज़ाइन स्पेशली फॉर होती है। डिज़ाइन स्पेशली किस लिए हुई है? टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए राउंड रॉबिंग स्केजुलिंग एल्गोरिथम डिज़ाइन हुई है। आगे है कीप इन माइंड स्केजुलिंग एल्गोरिथम व्हेन यू गो टू एनी फेमस फास्ट फूड्स franchise। On entering the store, each customer receives a number. The customer with the lowest number is served next। The algorithm is called bakery algorithm। ये आपने हैंड आउट में पढ़ी होगी, देखी होगी। ये बेकरी algorithm का पूरा एक वहाँ पे वो है प्रोसेस है। नेक्स्ट है which of the following command is used to read data from file named academics। तो ये कैट लेस देन academics ये पहले भी आया, दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये आंसर है इसका। आगे एक और क्वेश्चन है dash is the basis of queuing theory which is branching of mathematics used to analyze system involving queues and servers। वो होता है लिटल्स फार्मूला ये है। नेक्स्ट है राउंड रॉबिंग एल्गोरिथम इज मोस्ट सूटेबल फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम। ये अभी पहले आया था कि डिज़ाइन फॉर, तो ये है सूटेबल फॉर टाइम शेयरिंग। नेक्स्ट है यूजिंग हार्डवेयर सोल्यूशन टू सिंक्रोनाइजेशन फॉर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस ए न्यू सिंक्रोनाइजेशन टूल नो है सेमाफोर्स। वो न्यू सिंक्रोनाइजेशन टूल होगा सेमाफोर। नेक्स्ट है ए मेजर प्रॉब्लम विद प्रायोरिटी स्केजुलिंग एल्गोरिथम इज स्टारवेशन। यानी कि प्रायोरिटी स्केजुलिंग एल्गोरिथम जो होती है उसके में जो मेजर एक प्रॉब्लम आती है वो ये होती है स्टारवेशन होती है वो। नेक्स्ट है इन डैश एड्रेसिंग। कौन सी एड्रेसिंग में द रेसिपिएंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू नेम द सेंडर। तो एसिमेट्रिक जो एड्रेसिंग होती है इसमें रेसिपिएंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू नेम द सेंडर। राउंड रॉबिंग स्केजुलिंग एल्गोरिथम इन केस द टाइम क्वांटम इज़ वेरी लार्ज इन्फिनिट हो
लार्ज हो तो राउंड रॉबिन पॉलिसी रिमेन्स द सेम एज द FCFS पॉलिसी। FCFS है द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है जी, ये आंसर है। फिर है जी कर्नल। कर्नल इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मैनेजेस इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट फ्रॉम सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, ये होता है कर्नल इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मैनेजेस इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट फ्रॉम सॉफ्टवेयर। Next, the segment of code in which the process may change common variables, update tables, write into files is known as critical section. Next, you can use the rm file 1 command to remove file 1. rm होती है remove के लिए, rm file 1 command to remove file 1. ये है जी critical section is a place where certain shared structure is updated. Its solution requires certain precaution. One of them is the access to critical section by one process at a time only. What this condition is termed as, वो होगी mutual exclusion. Next question है dash command displays the contents of current working directory, वो होगा ls. Next question है अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है clock interrupt handler is an example of kernel thread that is not executed for servicing a request by a user thread. It is named as LWP. ठीक है जी, इसको LWP कहेंगे। फिर ये क्वेश्चन है मल्टी लेवल फीडबैक डैश scheduling allows a process to move between queues. तो मल्टी लेवल फीडबैक में queues जो scheduling होती है, it allows a process to move between queues. ये है जी द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ ए रियल टाइम सिस्टम की ये मेन होती है, वो होती है यूजिबिलिटी। ये इसकी मेन करेक्टरिस्टिक्स होती है रियल टाइम सिस्टम की। फिर है जी बैच प्रोसेसेस हैव लोअर प्रायोरिटी एज कंपेयर्ड विद इंटरएक्टिव प्रोसेसेस इन मल्टी लेवल क्यू स्केजुलिंग में, वो ये ट्रू होता है। बैच प्रोसेस हैव लोअर प्रायोरिटी, ये ट्रू होता है। नेक्स्ट है जी TSL बेस्ड सॉल्यूशन कैन इम्प्लीमेंट म्यूचुअल एक्सक्लूजन, इट एब्रीविएट्स टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन, ये आंसर है इसका। फिर है जी ये डैश इज आल्सो कॉल्ड स्वैपर। तो मीडियम टर्म जो होती है, मीडियम टर्म इज आल्सो कॉल्ड स्वैपर। फिर यह है किल कमांड इज यूज टू टर्मिनेट अ प्रोसेस, द सिंटैक्स फॉर द कमांड इज किल माइनस सिग्नल यानी कि डैश सिग्नल PID when executed without the signal number, the command sends the sig term। ठीक है जी। स्टूडेंट ये sig int, मुझे इन दोनों में डाउट है, ज़रा आप हैंड आउट से चेक कर लीजिएगा इन दोनों का ना। मुझे इसमें ये हो रहा है कि ये वाला है, शायद यहाँ पे ही डाउट हो रहा है। नेक्स्ट है डैश scheduling algorithm is sometimes called shortest remaining time first scheduling algorithm। तो प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट ये होती है, इसे इट इज़ आल्सो कॉल्ड शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम भी कहते हैं। आगे है इफ साइज ऑफ ए प्रोसेस इज 37605 बाइट्स एंड इट्स स्मॉलेस्ट फिजिकल मेमोरी एड्रेस इज 242785, इट्स एड्रेस स्पेस कैन नॉट एक्सीड बियॉन्ड 37605। ठीक है जी, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है ये पहले भी क्वेश्चन में आया था, पढ़ चुका हूँ, तो वहाँ ऊपर अभी थोड़ी देर पहले गुजरा है, तो उसका आंसर वहाँ पे मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट है हाउ मेनी मोड्स आर सपोर्टेड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टू आंसर है, 2 मोड्स आर सपोर्टेड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ए हैवी वेट प्रोसेस जो होता है हैज़ ए सिग्नल, ए हैवी वेट प्रोसेस जो होता है हैज़ ए सिंगल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन होता है उसका, हैवी वेट प्रोसेस का। फिर है जी इन प्रोसेस मैनेजमेंट सम ऑफ द जॉब्स कैन बी सस्पेंडेड फॉर सम टाइम इन ऑर्डर टू गिव
other jobs a chance to be in execution. Which command can be used to place back a suspended program? तो होता है एफ जी की कमांड होती है. Which of the following condition must be satisfied to solve the critical section problem? तो तीनों इसके आंसर हैं. बाउंडेड वेटेड भी है, प्रोग्रेस भी है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी है, ऑल ऑफ द मेंशन. ठीक है. कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड टू सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए तीनों होंगी कंडीशन सेटिस्फाइड. नेक्स्ट है राइट सिस्टम कॉल जो होगी में फेल फॉर, किस रीज़न के लिए फेल होगी? इन तीनों रीज़न के. इनवैलिड आर्गूमेंट, फाइल्स आर लिमिट फॉर प्रोसेस फॉर फाइल्स सिस्टम वुड एक्सीड, डिस्क इज फुल. तो इन तीनों कंडीशन या रीज़न के लिए सिस्टम राइट सिस्टम कॉल फेल होगी. तो ये आंसर है, इस पर क्लिक करना है. फिर ये क्वेश्चन है ए thread shares its resources like disk section, code section, open files, signals with other threads that belong to the same process. ये इसका आंसर है. बाउंडेड बफर इज ए बफर ऑफ फिक्स्ड साइज. कि बाउंडेड बफर जो होती है वो फिक्स साइज की बफर होती है. नेक्स्ट है you can have a thread wait for another thread within the same process by using the pthread_join system call. फिर है जी डैश एल्गोरिथम इज यूज फॉर सॉल्विंग एन प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम. तो बेकरी जो एल्गोरिथम होती है यूज फॉर सॉल्विंग एन प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम. नेक्स्ट है जी सेमाफोर एस इज है ये एक इंटीजर होता है. सेमाफोर एस जो होता है ना इज एन इंटीजर type of variable to use as synchronization tool. Next, a critical section problem can be solved by using how many ways? वो तीन तरह से उसकी critical section problem को solve किया जाता है. Next question है Unix और Linux system have one thing in common. वो होती है setup system call. फिर है जी इन लेयर्ड अप्रोच ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हाईएस्ट लेयर एन इज द यूज़र इंटरफेस. नेक्स्ट है डैश शेड्यूलिंग कैन बी मेड इनटू प्रोसेसर शेयरिंग अप्रोच. वो होती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. नेक्स्ट है द शेड्यूलिंग ऑफ कर्नल थ्रेड्स आर डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. डैश अप्रोच इंक्लूड द ईज ऑफ एक्सटेंडिंग द ओएस. वो होता है माइक्रो कर्नल अप्रोच इंक्लूड द ईज ऑफ एक्सटेंडिंग द ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं. फिर ये क्वेश्चन है फॉर अनडिवाइडेड एंड अनइंटरप्टेड टेस्टिंग एंड सेटिंग ऑफ सेमाफोर यूनिप्रोसेसर और सिस्टम यूनिप्रोसेसर सिस्टम टेंड टू डिसेबल इंटरप्ट्स. ये इसका आंसर है. नेक्स्ट है जी यूनिक्स सिस्टम वी scheduling uses queues which run round robin algorithm. Next है जी shortest remaining time first scheduling algorithm is referred to as shortest job first scheduling algorithm. ये इसका आंसर है, ये फॉल्स है. फिर जी डैश इज यूज इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या यूज होता है? नॉन प्रीएम्प्टिव scheduling इज यूज इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. ये आंसर है. फिर ये जी क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ए पैरामीटर ऑफ पी थ्रेड अंडरस्कोर क्रिएट. तो पी थ्रेड अंडरस्कोर क्रिएट का ये पैरामीटर नहीं है रिटर्न स्टेटस. नेक्स्ट है जी इन डैश इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन सेंडर मेंशन द नेम ऑफ द रेसिपिएंट. वो होता है डायरेक्ट. नेक्स्ट है जी द फाइल डिस्क्रिप्टर फॉर स्टैंडर्ड इनपुट एसटीडीन. वो होता है 0. नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ एस हेल्प्स मैनेज दी फॉलोइंग एक्सेप्ट. तो सिवाय इसके जो होता है ना बस स्पीड ऑफ द सिस्टम, इसके सिवाय जो होता है ओ एस हेल्प मैनेज दी फॉलोइंग, इनको हेल्प करता है सिवाय इसको हेल्प नहीं करता. ठीक है. ओ एस हेल्प्स मैनेज इन तीनों को हेल्प करता है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेमोरी वर्चुअल मेमोरी सिर्फ इसको हेल्प नहीं करता, बस स्पीड ऑफ द सिस्टम. नेक्स्ट है डैश अप्रोच इंक्लूड द ईज ऑफ एक्सटेंडिंग द ओएस. वो होता है माइक्रो कर्नल. नेक्स्ट है दी
डैश scheduling algorithm is sometimes called shortest remaining first time first scheduling algorithm होती है preemptive shortest job first, तो फिर रिपीट हुआ है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड टू सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम. ये तीनों ही होंगे उसमें, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंड्री वेटिंग, ये तीनों ही चीज़ें होंगी. कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम. ये इस पर क्लिक करना, ये आंसर है करेक्ट. नेक्स्ट है डैश कमांड इज यूज टू चेंज द डायरेक्टरी. तो सी फॉर चेंज, सी कमांड जो होगी यूज़ होगी तो चेंज द डायरेक्टरी के लिए. नेक्स्ट है जी, process having multiple threads of control implies it can do more than one task at a time. ये आंसर है. फिर है ये process A that has finished working but its parent process has also finished its execution. Is in this state the process A will be called as zombie process. इस तरह के कंडीशन में प्रोसेस को zombie process कहेंगे. Creating process is called a parent process while the new processes are called the children process. यानी creating जो होगा वो parent और new जो होंगे वो children होंगे. ठीक है. आगे है how many modes are supported in operating system. में वो 2 modes होते हैं जो कि supported होते हैं. ये पहले भी आया, दोबारा था आया था. नेक्स्ट है which of the following is used to show the end of file in Unix. तो यूनिक्स में एंड ऑफ फाइल के लिए क्या यूज़ होगा, कंट्रोल प्लस डी, ये यूज़ होगा. फिर है जी इफ़ योर प्रोसेसर डज नॉट हैव 2 स्लॉट्स एम्प्टी इन पर प्रोसेस फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल देन योर पाइप सिस्टम कॉल विल फेल. ठीक है जी, पाइप आंसर है, पाइप सिस्टम कॉल विल फेल. नेक्स्ट है डैश प्रोसेसर थ्रेड्स ऑफन नीड एक्सेस टू शेयर डाटा एंड शेयर रिसोर्सेज. वो कंकरेंट प्रोसेसेस होते हैं. नेक्स्ट दी लिनक्स यूजेस /etc. लिनक्स में /etc डायरेक्टरी यूज़ होती है, डायरेक्टरी टू स्टोर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल के लिए /etc. नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर इज कॉल्ड लेटेंसी. नहीं, इसे लेटेंसी नहीं कहते. एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाने को उसे लेटेंसी नहीं कहते, ये फॉल्स है. उसका करेक्ट पता क्या होगा, वो होगा स्वैपिंग. नेक्स्ट है डैश इज़ नॉट अ सिस्टम कॉल. इनमें ये से कौन सी सिस्टम कॉल लेनी है लिनक्स में, MK FIFO ये कॉल नहीं होती, सिस्टम कॉल नहीं होती. रीड भी होती है, ओपन भी होती है, MK नॉट भी होती है, ये नहीं होती MK FIFO. दिस इज़ नॉट, ये आंसर है, not a system call in Linux. Next dash algorithm used for solving n process critical section problem. तो bakery algorithm is used for solving n process critical section problem होती है. फिर है जी कर्नल इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मैनेजेस प्रोसेसेस. कर्नल क्या करता है, कंप्यूटर पर मैनेज करता है प्रोसेसेस को रिक्वेस्ट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर. जब भी हम विंडो इंस्टॉल कर रहे होते हैं या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं ना, तो ये कर्नल ही होता है जो कि कंप्यूटर में उसको मैनेज करता है, उस प्रोसेस को या कि उसकी इंस्टॉलेशन को मैनेज करता है. किसी भी प्रोग्राम को इंस्टॉल करने में, विंडो के इंस्टॉल में कर्नल जो होता है कंप्यूटर में, ये प्रोसेसेस को या उसकी इंस्टॉलेशन को मैनेज करता है. आगे है जी Dash defines an operating system as a bridge between computer user and hardware for user's convenience. तो टॉप डाउन व्यू जो होता है डिफाइन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम ब्रिज बिटवीन कंप्यूटर यूज़र और हार्डवेयर. फिर है जी मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस थ्रेड. ये थ्रेड की एक कमांड है. टेक 2 आर्गूमेंट्स. ये 2 आर्गूमेंट देगा दैट आर यूज टू टेक. वो 2 आर्गूमेंट क्या होंगे, एक तो होगा न्यू थ्रेड आईडी और दूसरा होगा प्रोसेस नेम. ठीक है जी, मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस में थ्रेड की जो कमांड होगी 2 आर्गूमेंट देगी, न्यू थ्रेड आईडी और प्रोसेस नेम. नेक्स्ट है डैश इज़ एन इंटीजर वेरिएबल दैट अपार्ट फ्रॉम द इनिशियलाइजेशन एक्सेसिबल ओनली थ्रू स्टैंडर्ड एटॉमिक ऑपरेशन. वो होगा सेमाफोर. सेमाफोर इज़ एन इंटीजर वेरिएबल.
कोऑपरेटिव प्रोसेसेस नेवर शेयर एनी डाटा, कोड, मेमोरी और स्टेट। ये फॉल्स है जी, ये नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फिर है जी, ये थोड़ा ना यहाँ पे आपको साफ नज़र नहीं आ रहा, तो मैं पढ़ रहा हूँ, उस पर गौर कर लें। स्वैपर इज़ आल्सो टर्म्ड एज शॉर्ट टाइम स्केजुलर, ये ट्रू है। स्वैपर को आल्सो कहते हैं शॉर्ट टाइम स्केजुलर, ये ट्रू है। तो डैश कमांड डिस्प्लेज दी कंटेंट्स ऑफ करंट वर्किंग डायरेक्टरी, एलएस की कमांड। अच्छा, इसको मैं ना आगे कर देता हूँ स्किप, ये साफ नज़र नहीं आ रहे, तो यहाँ से चल लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, यहाँ तक ये साफ नहीं थे, तो यहाँ से कंसिडर ए सिनेरियो इन विच वन प्रोसेस P1 enters in critical section, now other process is allowed to execute in this critical section। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये आंसर है इसका, इस कंडीशन में ये ऐसा होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सिस्टम कॉल दैट क्रिएट्स अ पाइप फॉर आईपीसी, इफ वन ऑफ द ऑपरेशन फ्रॉम रीड राइट वुड फेल देन व्हाट विल बी रिटर्न एट रिजल्ट। वो आंसर इसका है 1। ठीक है जी, इस क्वेश्चन का आंसर है 1। आगे चलते हैं जी। कौन सी कमांड यूज़ होती है टू चेंज द डायरेक्टरी? तो cd की कमांड यूज़ होती है, चेंज, सी फॉर चेंज, डी फॉर डायरेक्टरी। तो cd कमांड इज़ यूज टू चेंज द डायरेक्टरी, इसका आंसर है cd। ठीक है, ये देख लें, ये cd आंसर इसका। आगे चलते हैं। लिंक बिटवीन टू प्रोसेस p and q to send and receive messages is called communication link। फिर है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड टू सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो कौन सी कंडीशन जो सेटिस्फाइड होगी? ये तीनों ही होंगी। ठीक है, तो आप यहाँ नीचे चौथा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द गिवन, तो आपने उस पर क्लिक करना है, ये तीनों होंगे। ठीक है, तो ऑल ऑफ द गिवन पे आपने क्लिक करना है। ये पहले भी ऊपर मैं पढ़ चुका हूँ, ये दोबारा आया रिपीट होके। ठीक है जी, समझ आ रहा है आपको कि यहाँ नीचे होगा ऑल, उस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम हेल्प इन मैनेजिंग द फाइल एंड मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम? वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प इन मैनेजिंग द फाइल एंड मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम। आगे है क्वेश्चन है, डैश आर लोएस्ट प्रायोरिटाइज प्रोसेसेस फॉर स्केजुलिंग इन कर्नल ग्रुप। तो उसका आंसर है ब्लॉक आईओ कंट्रोल प्रोसेसेस, ये इसका आंसर है थर्ड वाला। ये आर लोएस्ट प्रायोरिटाइज प्रोसेसेस होते हैं कर्नल ग्रुप में। ये क्वेश्चन है, डैश enable the user process to request the operating system to execute a privileged instruction for it। वो होता है इंटरप्ट enable the user process करते हैं। आगे चलते हैं। यूनिक्स लिनक्स एनवायरनमेंट में आयशा वांट्स टू नो द कंप्लीट पिक्चर ऑफ करंट प्रोसेस इन हर सेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल हेल्प हर इन दिस रिगार्ड? ये कमांड होगी $ps। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बाउंडेड बफर इज़ ए बफर ऑफ, कितने साइज़ की वो बफर होती है बाउंडेड बफर? ये फिक्स्ड होती है, इसका फिक्स्ड आंसर है, पहले भी पढ़ा है मैंने, दोबारा आया है ये इसका आंसर है फिक्स्ड। बाउंडेड बफर इज़ ए फिक्स्ड बफर साइज। नेक्स्ट है, प्रोसेस ऑफ स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर इज कॉल्ड लेटेंसी, ये ट्रू है। प्रोसेस स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर लेटेंसी, नहीं, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। पहले ऊपर आया है एक जगह ये, तो अच्छा स्टूडेंट, ये ना मुझे इनमें डाउट लग रहा है, तो थोड़ा सा ना, एक मिनट ठहरें, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट हाँ, इस यहाँ से चलते हैं, वो उनमें थोड़ा डाउट है। विच वुड नॉट बी एडवांटेज ऑफ थ्रेड, उनमें से थ्रेड का एडवांटेज कौन सा नहीं है? सेपरेट एड्रेस स्पेस। ठीक है, दिस इज नॉट द एडवांटेज ऑफ थ्रेड। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। ये है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम रेफर टू एज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम, ये ट्रू है मेरा ख्याल से, इसका मेंशन नहीं, आप हैंड आउट देख रहे हैं, वैसे ट्रू है। अच्छा, ये कमांड डिस्प्ले
डैश कमांड डिस्प्ले द स्टेटस ऑफ प्रोसेस, PS की जो कमांड है डिस्प्ले द स्टेटस ऑफ प्रोसेस। Unix linear default standard output file is attached to the screen। ये क्वेश्चन पहले भी आया है, 2-3 दफ़ा आ गया ये, फिर कैट, ये इसका आंसर है, ये पहले भी आ चुका है 2-3 दफ़ा। आप चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट लेके आराम से अपना ना तैयारी कर सकते हैं, या मेरी वीडियो को आप 3-4 दफ़ा गौर से सुन लेंगे तो आपके पेपर की अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसमें इतने MCQs हैं कि आपके वो 20 MCQs जो आने हैं मिड टर्म में वो आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। बाकी आप सब्जेक्टिव की हैंडबुक से तैयारी कर लें। नेक्स्ट है कंसिडर सिनेरियो CPU प्रोटेक्शन। डैश इज एडिड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू डिटेक्ट एंड वाइल लूप इन यूज़र प्रोग्राम। तो इसका आंसर यहाँ पे मेंशन नहीं है। क्या एडिट होता है? टाइमर, वाइल डू, बेस लिमिट। अच्छा, इसका हैंड आउट देख लें, मुझे इसका टाइमर लग रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन है हार्डवेयर मल्टीप्रोसेसर एनवायरनमेंट, 2 इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूट होती हैं ऑटोमेटिकली, विच आर स्वैप एंड टेस्ट एंड सेट। इसका भी नहीं आंसर, ये भी देख लें हैंड आउट से। ये है फाइल्स विद, ये इसका ये आंसर ऑल ऑफ द मेंशन, तीनों ही होंगे। प्रायोरिटीज ऑफ प्रोसेसेस इन द कर्नल ग्रुप रिमेन फिक्स्ड, ये आंसर है। When sender never block because it has infinite length stage storage area, then it means it is holding a queue of unbounded capacity। Which of the following is true? ये 4 कमांड पहले भी आया है, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ऊपर एक जगह रेड टिक किया हुआ मैंने आपको दिखाया हुआ है। यूज ऑफ सेमाफोर क्रिएट a problem of busy waiting, which this way CPU cycle some more that some other process may be able to use productively। This type of semaphore is also called spin lock, ये आंसर है। System calls provide the interface between process and the operating system, ये आंसर है इसका। A signal is an event generated to get attention of process। Next question है batch process have lower priority as compared with interactive process and multi-level queue scheduling। इसका ना आप हैंडआउट से देख लें थोड़ा सा मुझे कि ये ट्रू है या फॉल्स है, हैंडआउट से आप चेक कर लें, वेरीफाई कर लें थोड़ा सा। टेकिंग द CPU फ्रॉम द वन प्रोसेस गिवन CPU टू अनदर टर्म्स है, ये भी गलत इसका आंसर लिखा हुआ है। इस हैंडआउट से देख लें, स्वैपिंग होता है ये। नेक्स्ट है ये भी पहले हो चुका है। करेक्ट एवरेज टाइम जो होगा वो 2 होगा इसका। अच्छा अच्छा स्टूडेंट ना, थोड़ा सा मैं आगे, ये आ गया बिलाल का। अच्छा, माइक्रो पर concurrent processes must be synchronized to prevent mutual exclusion, ये इसका आंसर है। थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेता हूँ। ये अब ठीक है शायद, ये ऊपर चला गया, कहाँ चला गया? अच्छा ये, अच्छा ये एक मिनट, ये क्वेश्चन है फॉर undivided and uninterrupted testing and setting of semaphores uniprocessor system tend to disable interrupts। फिर ये जी है यूनिक्स सिस्टम वी scheduling using queues which run round robin algorithm
फिर है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट scheduling रेफर टू है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट scheduling, ये फॉल्स है। डैश इज यूज्ड इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉन प्रीएम्प्टिव scheduling यूज होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। फिर है जी विच इज़ नॉट ए पैरामीटर ऑफ पी थ्रेड अंडरस्कोर क्रिएट, ये है रिटर्न स्टेटस। नेक्स्ट है इन डैश इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है सेंडर मेंशन द नेम ऑफ द रिसिपिएंट, होता है डायरेक्ट। नेक्स्ट है फाइल डिस्क्रिप्टर फॉर स्टैंडर्ड इनपुट एस टी डी इन, वो होता है ज़ीरो होता है, ये आंसर है ये। नेक्स्ट है ओ एस हेल्प्स मैनेजेस द फॉलोइंग, ओ एस जो होता है इन तीन चीज़ों को मैनेज करता है सिवाय एक, वो होता है बस स्पीड ऑफ द सिस्टम, ये इसका आंसर है करेक्ट। नेक्स्ट है डैश अप्रोच इंक्लूड द ईज ऑफ एक्सटेंडिंग द ओ एस, वो होता है माइक्रो कर्नल। नेक्स्ट होता है डैश scheduling algorithm समटाइम्स कॉल्ड शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट scheduling algorithm, वो होती है प्रीएम्प्टिव शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। फिर है जी which of the following condition must be satisfied to solve the critical section problem, होता है ये तीनों ही हैं ऑल ऑफ दी की मेंशन, ये ठीक है जी ये तीनों ही हैं तो ये इस पर क्लिक करेंगे। फिर है जी डैश कमांड इज यूज टू चेंज द डायरेक्टरी, तो सी डी की कमांड यूज होती है चेंज डायरेक्टरी के लिए सी डी। फिर ये है प्रोसेस हैविंग मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ कंट्रोल इम्प्लाइज इट कैन डू मोर देन वन टास्क एट अ टाइम, ये नेक्स्ट है प्रोसेस ए दैट हैज़ फिनिश्ड working but its parent process has also finished its execution in this state, the process A will be called as zombie process. Next है creating process is called a parent or the new process is called children. Next है how many modes are supported in operating system, में दो modes होते हैं supported. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू शो द एंड ऑफ फाइल, यूनिक्स में एंड ऑफ फाइल के लिए कंट्रोल प्लस डी होगा। if your processor does not have two slots empty in per process file descriptor table, then your pipe system call will fail, ये आंसर है। if size of process is 376,052 bytes, यानी कि 37,76,052 बाइट्स हो, स्मॉलेस्ट फिजिकल मेमोरी एड्रेस जो होगा वो ये होगा 242785, इट एड्रेस स्पेस कैन नॉट एक्सीड बियॉन्ड, तो इसका आंसर जो था वो ये था पहले बताया एक जगह, तो इसको देख लें दोबारा वेरीफाई, मैंने सिर्फ पहले मैंने एक का बताया ये वाला शायद बताया था। ये क्वेश्चन है डैश प्रोसेस ऑफ थ्रेड्स ऑफर नीड एक्सेस टू शेयर डाटा एंड शेयर रिसोर्सेज, वो होता है कंकरेंट प्रोसेस, जो कंकरेंट प्रोसेस होते हैं थ्रेड्स होते हैं ऑफन नीड एक्सेस टू शेयर डाटा। नेक्स्ट है लिनक्स यूजेस, लिनक्स में स्लैश etc की डायरेक्टरी टू स्टोर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल के लिए यूज़ होती है, ये आंसर है। प्रोसेस ऑफ स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर इज कॉल्ड लेटेंसी, ये फॉल्स है। डैश इज नॉट ए सिस्टम कॉल इन लिनक्स, MK54 होती है ये लिनक्स में सिस्टम कॉल नहीं होती, बाकी ये तीनों होती हैं, तो ये आंसर है इसका। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एल्गोरिथम इज यूज फॉर सॉल्विंग एन प्रोसेस, वो एन प्रोसेस के लिए बेकरी एल्गोरिथम यूज़ होती है, बेकरी एल्गोरिथम होती है एन प्रोसेस की सॉल्व करने के लिए क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है जी कर्नल इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मैनेजेस प्रोसेस रिक्वेस्ट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। Dash defines an operating system as a bridge between computer user and hardware from a user convenience, होता है टॉप डाउन व्यू। फिर है जी मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस थ्रेड टेक टू आर्गुमेंट, वो होंगे न्यू थ्रेड आईडी और प्रोसेस नेम, ये होंगे। फिर है जी डैश इज़ एन इंटीजर वेरिएबल, तो सेमाफोर जो होता है इज़ एन इंटीजर वेरिएबल होता है अपार्ट फ्रॉम द इनिशियलाइजेशन इज एक्सेसिबल ओनली थ्रू, ये आंसर है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है cooperating processes never share any data, code, memory or state, ये false है। test and set instruction is executed atomically, ये आंसर है। अच्छा जी
मेरे से ये काफ़ी हो गए हैं, ये आपको दिखा दिए हैं, काफ़ी सारे मैंने दिखा दिए हैं। तो मेरे से आपकी तैयारी के लिए काफ़ी हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।